पहले चैप्टर का है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस जब भी पढ़ेंगे हम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का क्या पॉलिसी मैटर्स रहते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है, उनको कैसे अप्लाई किया जाता है, उन सब के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंट्रीज के लिए जरूरी होता है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन उसको बोलते हैं जो एक बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स, ए बॉडी ऑफ आइडियोलॉजिकल टेनेट्स मतलब प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच ए नेशन इज गवर्न्ड। यानी कोई भी देश कैसे रन होगा, कोई भी गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, दैट इज फॉलोड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। So the constitution nothing, it is a written law of land, means कोई भी काम लॉ के अनुसार होगा, कानून के अनुसार होगा, यानी कानून का राज। Any government which works based on the tenets of ideology and principle, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जब भारत आजाद होने वाला था उससे 2 साल पहले, 1947 से 2 साल पहले, हमारे फोर फादर्स, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने ये डिसाइड किया था कि हमें एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का देश बनाना है। यानी ऐसा देश जहां पे लोगों को अधिकार हो, लोगों को हक। तो हमारे देश के नेताओं ने आजादी से पहले, यानी अंग्रेजों ने जब क्विट इंडिया इन 1947, the planning was well in advance, propagated by our forefathers, that constitution बनाने के लिए हमें अभी से काम शुरू हो। तो उससे पहले ही शुरू हो गया था काम, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और कैबिनेट मिशन के प्रिंसिपल के आधार पे बहुत सारा काम हमारे नेताओं ने किया। उसी के अनुसार टू कंसीव द कॉन्स्टिट्यूशन, it was debated upon and drafted by an assembly of elected representative part of Constituent Assembly. Constituent Assembly उन elected members की एक assembly थी जिसमें 299 members थे और उन्होंने हमारे देश के संविधान को कंसीव करने के लिए, उनको कैसे बनाना है, debated upon, उस पे वाद विवाद और डिस्कशन हुआ था। And it was drafted that this type of constitution India needs. India requires such type of constitution which was beautifully conceived, well debated upon and drafted by the Constitution Assembly and its 299 members. This assembly was being headed by Dr. Rajendra Prasad initially and the drafting committee was being headed by Dr. Ambedkar. Bhimrao Ambedkar was heading this committee, and on debatation, on the discussions on various perceptions, it was decided that this constitution, which was well debated by the 299 member and Constitution Assembly, to be adopted on 26 November 1946. The constitution came into effect from 26 November 1947, but actually it was applied in 1950. So we follow the Republic Day celebration on 26th of January. Constitution having a lot of body, lot of parts upon it. The first and foremost part of the Constitution is this one. Now I will discuss about the preamble. What is the preamble? Preamble of our constitution is nothing but it is a philosophy on which constitution has been built. Preamble is nothing but a philosophical tenets का एक बॉडी है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। What it says? It says that we preamble of our constitution. Preamble हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की आत्मा है। इसमें हमारे संविधान की फिलोसॉफी यानी अवधारणा यानी कि सोच, जिसपे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन
बिल्ड हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। तो प्रियम्बल क्या हो गया? दिस इज ए फिलोसॉफी ऑन विच आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बिल्ट। इस प्रियम्बल में क्या है? पहली लाइन में लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure its citizen justice, equality, and fraternity. What it means? It means that we, the people of India, having solemnly and resolved that sovereign, यानी हमारा देश sovereign होगा, यानी आजाद होगा, वो किसी के गुलाम नहीं होगा, वो किसी के कहने पे काम नहीं करेगा, वहां की सरकार आजाद होगी, हमारा देश और कंट्री विल बी फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ sovereignty. Socialist means in society all the sections will enjoy the freedom, there won't be any sort of exploitation to the society or social groups. Secular means before the government or the state shall not discriminate anything on religious base, यानी स्टेट धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा, सरकार किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगा, उनके सामने सारे धर्म समान होंगे। फिर आता है डेमोक्रेटिक मींस इट्स गवर्नमेंट विल बी चूजन बाय द पीपल, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, दोस representative will be elected by the people and they will form the government. Republic means there won't be any hereditary ruler. The head of state will also be elected. And to secure citizen justice, justice in all forms means law of land होगा, justice in all sort of, सभी को न्याय मिलेगा, वहां पे न्याय का कानून होगा, कानून का राज होगा। इक्वलिटी, इक्वलिटी का मतलब है कि समानता का भाव होगा, सभी धर्म, जात, लिंग या किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, ब्रदरहुड के आधार पे ये जो हमारे फिलोसॉफिकल टेनेट्स दिए गए हैं प्रियम्बल में, उन्हीं के आधार पे हमारे संविधान को आगे इलेबोरेट किया गया है, उसको डिटेल में आगे लिखा गया है। तो प्रियम्बल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि प्रियम्बल में बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी गई है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को के सारे प्रिंसिपल्स को बताती है, आइडियाज को बताती है, फिलोसॉफी को बताती है। क्योंकि प्रियम्बल में ये सारी चीजें हैं, सॉवरेनिटी है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, SSDR JPF।